Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. If you can hear my voice, please raise your hand. Okay, students. Yesterday we have completed our chapter number 5, Ali Baba, and now today we are going to start chapter number 6 that is included in your next exams. Okay, so the name of the chapter is The Tale of Sinbad the Sailor. Okay, it's on page number 35. I request all students to open your book, Arabian Nights, page number 35. It's chapter 6, The Tale of Sinbad the Sailor. It's beautifully written story, very interesting, very fascinating. You will definitely enjoy it. First of all, I would like to tell you about the characters. So, the main character is in the title, Sinbad. This next characters of the story include a captain, sailors. So what is sailor? Sailor is the member of ship's crew. ठीक है, एक ship crew में जो persons होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका जो member होते हैं, वो तमाम sailor कहलाते हैं. ठीक है. So sailor means a member of ship's crew. The first character is sailor, and next characters are, one of them is captain, sailors, or a friend. ठीक है. And there are many animal characters in the story. ठीक है. You will definitely enjoy reading them. There are many animal characters such as fish, giant bird, giant fish, monkeys, snakes, and a giant as well. So let's start our chapter, The Tale of Sinbad the Sailor. ठीक है. Sinbad, he is a sailor. ठीक है. A member of ship's crew. We sail away. ठीक है. When I was still quite young, ठीक है, when I was actually young, my father died. ठीक है. मेरे father का इंतकाल हो गया and left me all his money. और उन्होंने अपने पीछे मेरे लिए तमाम जो पैसे हैं वो छोड़ दिए. ठीक है. I bought a ship. ठीक है. Now यहाँ पे the use of I means Sinbad is telling you his story. ठीक है. So when I was still quite young, my father died and left me all his money. I bought a ship. मैंने एक ship खरीदी. Bought is the second form of buy. ठीक है. How do we know that this is the second form of the verb or third? ठीक है. Because second and third form of the verb is same. Buy, bought, bought. कैसे पता चलता है कि this is the second form of the verb? Because there is no helping verb here. जब हम helping verb use नहीं करते, it means कि हम second form of the verb लगा रहे हैं. ठीक है. I bought a ship. मैंने एक ship खरीदी. I paid a captain and some sailors to work for me. ठीक है. I paid a captain. मैंने एक captain को pay किया, पैसे दिए, उसको खरीदा अपने ship के लिए, और some sailors to work for me. ठीक है. और कुछ sailors को, कुछ members उसने ship के, जो कि ship में सवार हो सके, ship में उसके साथ मदद कर सके ship को चलाने में. ठीक है. तो उसने उन सबको पैसे देके अपने साथ कर लिया. I was sure, मुझे यकीन था, I was going to make a lot of money. ठीक है. मुझे यकीन था कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा. We sailed far away across the sea. Across the sea means everywhere in the sea. ठीक है. We sailed far away. वो बहुत दूर तक sea में हर जगह उन्होंने सफर किया समुद्र के अंदर. At last, आखिरकार,
So there is a one line, ठीक है, underline it. I paid a captain some sailors to work for me. ठीक है. अच्छा students, one more thing to tell you is at the end of this at the end of this lecture I will ask you questions as well. ठीक है, regarding this story. I will ask you questions and you can also ask me question if you have any. ठीक है. So be very cautious, be very careful, be very attentive during the lecture. Pay attention to each word, each thing I am going to describe for you. We sailed far away across the sea. हमने समुद्र में हर जगह पर सफर किया. बोट में at last आखिरकार we saw a small island. हमने एक small island देखा. Island किसे कहते हैं? जजीरे को. ठीक है, क्या हमने एक small island देखा. It was very big, just a yellow beach. ठीक है, वो बहुत ज्यादा बिग था. जस्ट अ येलो बीच, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक येलो बीच हो. ठीक है, बीच दैट इज ऑफ द येलो कलर. नेक्स्ट देखते हैं एंड ऑफ फ्यू स्मॉल प्लांट्स, जिसके अंदर बहुत फ्यू स्मॉल प्लांट्स हैं. Some of us decided, हम में से कुछ लोगों ने ये फैसला किया to go on land, कि वो इस लैंड में, इस आइलैंड के ऊपर जाएंगे. द कैप्टन वॉज asleep. ठीक है, कैप्टन अभी भी सोया हुआ था. We did not wake him. हमने उसको नहीं जगाया. Two of our sailors took a big wooden barrel full of dirty clothes. ठीक है, हम में से दो सेलर्स ने क्या किया? took a big wooden barrel. हमने एक wooden barrel उठाया. This is the wooden barrel. You can see in the picture. ठीक है, this is called wooden barrel. ठीक है, because it is made of wood. So इसीलिए इसको wooden barrel कहते हैं. Two of our sailors took a big wooden barrel full of dirty clothes. हम में से दो sailors ने क्या किया? Full of dirty clothes, एक wooden barrel को उठा लिया. Perhaps, शायद, there is fresh water on this island. They said, उन्होंने क्या कहा? उन दोनों ने क्या कहा? शायद कि इस island में fresh water होगा, साफ पानी होगा. It will be good to wash our clothes in fresh water again. ठीक है, it will be good to wash, यानी कि हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अपने कपड़े जो है fresh water में दोबारा से धोएं. Okay, we lit a fire on the beach. हमने बीच पर, जो येलो बीच उनको दिख रहा था, उस पर उन्होंने आग जलाई. Suddenly, अचानक, we saw some water shooting up into the air. हमने देखा कि उस आइलैंड में से किसी जगह से वाटर शूट अप हो रहा है. शूट अप मीन्स जैसे कि एक फाउंटेन टाइप होता है ना, पानी बाहर निकल रहा है वहां से, लाइक अ फाउंटेन. इट फ्लू अप, वो ऊपर जाता चला गया. हायर देन द टॉलेस्ट ट्री. ठीक है, सबसे ज्यादा टॉलेस्ट ट्री से ज्यादा वो ऊंचा जा चुका था, जितना हाईएस्ट टॉलेस्ट ट्री होता है. देन फिर इट ड्रॉप डाउन अगेन, और फिर वो दोबारा ड्रॉप डाउन हो गया, नीचे आ गया. आई क्लोज माई आईज, मैंने अपनी आंखें बंद की. एंड रब्ड देम, उन्होंने रगड़ा, रब किया. ठीक है, व्हेन आई ओपन देम अगेन, जब मैंने उन्हें दोबारा खोला, आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैं इस चीज पर यकीन नहीं कर सका जो मैंने देखा था. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? द आइलैंड कम्स टू लाइफ. आइलैंड अब जिंदा हो चुका था. लेट्स सी. सडनली वी हर्ड द वॉइस ऑफ द कैप्टन. सडनली, अचानक, हमने कैप्टन की आवाज सुनी. ही वॉज अवेक नाउ. ठीक है, द कैप्टन वॉज ऑन द शिप. ठीक है, लेकिन few of the sailors with Sinbad went to the island. तो उन्होंने, जब वो आइलैंड पे वो मौजूद थे, उन्होंने कैप्टन की आवाज सुनी. He was awake now. अब वो जाग चुका था, because the last time when they saw him he was sleeping. So when he could see what was happening, जब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा था, तो उसने क्या कहा? Come back to the ship, he shouted. वो चिल्लाया कि शिप में वापस आ जाओ. You are in horrible danger. तुम एक बहुत खतरनाक खतरे में हो. हॉरिबल, खौफनाक खतरे में हो. नेक्स्ट देखते हैं.
This island is moving, the sailor shouted. ठीक है, the one of the sailors, one of the member of the ship shouted, the island is moving. Island move कर रहा है. We ran to our little boat. हम अपनी little boat की तरफ भागे. The ship was sailing away from us. ठीक है, लेकिन जो शिप थी जिसमें से वो आए थे, अब नाउ द शिप वाज सेलिंग अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर जा रही थी. एंड द आइलैंड वाज गोइंग डाउन, और वो जो आइलैंड था अब वो नीचे को पानी में जा रहा था. ऑलरेडी द येलो बीच वाज स्मॉलर, और जैसे जैसे वो पानी में नीचे जा रहा था, जो उसके ऊपर येलो बीच उनको दिखाई दे रहा था वो छोटा होता चला गया. वी आर ऑन अ ह्यूज फिश, हम एक ह्यूज फिश के ऊपर हैं. वन ऑफ द सेलर क्राइड, एक सेलर चिल्लाया. ठीक है, उसने चिल्लाकर क्या कहा, वी आर ऑन अ ह्यूज फिश, हम एक ह्यूज फिश के ऊपर हैं. और फायर हैज वोकन इट, और हमारी आग ने जो हम जलाई थी उसने उसको जगा दिया है. स्टूडेंट्स, डू नॉट टर्न ऑन योर कैमरास. जैनब, ही वॉज राइट, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था. दैट वॉज नो आइलैंड, वहां पर कोई भी आइलैंड नहीं था, जजीरा नहीं था. इट वॉज द स्लीपिंग बॉडी ऑफ अ ह्यूज फिश, द लार्जेस्ट फिश इन द वर्ल्ड. ठीक है, इट वॉज, वो क्या था जिसपे वो गए थे, जिसको वो आइलैंड समझ रहे थे. इट वॉज द स्लीपिंग बॉडी ऑफ अ ह्यूज फिश, वो एक स्लीपिंग बॉडी थी एक ह्यूज फिश की, जो कि तमाम फिश में से सबसे ज्यादा भरी थी. इन द वर्ल्ड, दुनिया की तमाम फिश में सबसे ज्यादा वो भरी फिश थी. फॉर इयर्स एंड इयर्स इट स्लेप्ट, कई सालों तक वो सो रही थी. नाउ इट वॉज अवेक, अब वो जाग चुकी थी. बट इट वॉज ऑल्सो इन पेन. सो जो उन्होंने आग जलाई थी जिसकी वजह से, इट वॉज ऑल्सो इन पेन. इट्स ह्यूज टेल फ्लू अप इनटू द एयर एंड फेल ऑन और लिटिल बोट. ठीक है, उसकी जो ह्यूज टेल थी फ्लू अप, वो ऊपर उठी और हमारी लिटिल बोट के ऊपर गिर गई. द बोट ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस. अब नाउ वो जो बोट थी जिसपे वो सवार थे, वो 1,000 पीसेस में उसके टुकड़े हो गए. आई वॉज फ्राइडन, मैं बहुत डरा हुआ था. आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज गोइंग टू डाई, कि मैं मरने वाला हूँ. डू यू नो व्हाट सेव्ड माई लाइफ, क्या आपको पता है व्हाट सेव्ड माई लाइफ? इट वॉज दैट स्टूपिड बैरल ऑफ डर्टी क्लोथ्स. ठीक है, इट वॉज दैट बैरल, इस बैरल में ने उसकी जान बचाई. हाउ, लेट्स सी. डू यू नो व्हाट saved my life? Underline this line. It was that stupid barrel of dirty clothes. ठीक है, वो बैरल था जिसमें हम उन्होंने dirty clothes रखे हुए थे, wooden barrel. I side beside me, मैंने उसको अपने next to, beside means next to, मैंने अपने पास उसको देखा. In the water, पानी में. I held on onto it and climbed in. मैंने उसको पकड़ा और मैं उसके ऊपर चढ़ गया, यानी कि वो उस बैरल में अंदर घुस गया. The sailors went down with the huge fish to the bottom of the sea. लेकिन जो तमाम sailors उसके साथ थे, they went down, वो नीचे जमीन में चले गए, with the huge fish के साथ, to the bottom of the sea. So that's how he lost his all sailors. ठीक है, जो उसके साथ उस आइलैंड में गए थे. Now, who left was the Sinbad, the strange church. The ship was far away. शिप हमसे बहुत दूर थी. I was alone in the wide empty sea. मैं alone था, बहुत अकेला था. Wide, वसी, empty, खाली sea में. I do not know how long I was in my barrel. मुझे नहीं पता. I do not know, मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर तक अपने बैरल में था. But at last, आखिरकार, I woke up on a wide white beach. मैं एक wide white beach पे जागा. Where am I? I thought. मैंने सोचा कि मैं कहाँ पर हूँ.
If I climb a tree, perhaps I can see something. ठीक है, उसने सोचा कि अगर मैं एक ट्री पे चढ़ जाऊं, perhaps शायद I can see something. हो सकता है कि मुझे कुछ नजर आए. I climbed a tree and looked around. मैं ट्री पे चढ़ा और मैंने इधर उधर देखा. Far away I saw a huge shining white dome. Far away बहुत दूर मैंने देखा कि एक shiny white dome है. Dome कहते हैं गुम्बद को, ठीक है, जो मस्जिद में होता है. This is the shape of the dome, ठीक है, as you can see in the picture in the next page. So far away I saw a huge shining white dome. There must be a church over there, I cried. ठीक है, उसने सोचा, उसने कहा कि there must be a church over there. वहां पे जरूर कोई ना कोई चर्च होगा. ठीक है, I walked very fast on my poor tired legs towards the dome. वो बहुत तेज दौड़ा. Although he was very tired, but he tried to run fast towards the dome. Dome की तरफ. Zaryab Haider. बेटा, do you know this lecture is a recorded lecture? आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये रिकॉर्ड होके डेफिनेटली ऑफिस में देखा जाएगा और से फिर आपके नाम भी पता चल जाएंगे और आपके घर में कॉल्स भी आ सकती हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हर लेक्चर में ये काम करते हैं. ठीक है, let's see what happens next. When I arrived, जब मैं वहां पे पहुंचा, I found no doors or windows. ठीक है, उसको लगा that there was a church there, but he found no doors or windows. उसने कोई भी वहां पे डोर या विंडो नहीं देखी. The whole dome was as white as and smooth as an egg. ठीक है, the whole dome was as white and smooth as an egg. वो बिल्कुल ऐसे white और smooth था जैसे कि egg होता है. I did not understand it. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई. Suddenly, so there were some lines. I forgot to underline it for you. If I climb a tree, perhaps I can see something. The next line is the whole dome was as smooth, as white and smooth as an egg. ठीक है, please underline these two lines from your book. Let's move on. Suddenly the sky grew dark. Suddenly आसमान पे अंधेरा छा गया. Was it a rain cloud? उसने सोचा कि क्या ये rain clouds हैं, क्या बारिश होने वाली. I looked up, मैंने ऊपर देखा and saw a huge bird. और मैंने एक बहुत huge big bird देखा. Larger than the biggest cloud you have ever seen. Larger than, उससे भी भरा, the biggest cloud you have ever seen. उससे भी भरा, जितना बड़े हम क्लाउड्स देखते हैं उससे भी वो जो बर्ड था वो जायंट था, बिग था. So underline this line. I looked up and saw a huge bird larger than the biggest cloud you have ever seen. It was a great giant of a bird. ठीक है, so this kind of bird was a giant bird, the largest bird in all the world. ठीक है, ये bird दुनिया का सबसे largest bird था. Then I knew something else. फिर मुझे कुछ और पता चला. The church was a bird's egg. ठीक है, और तब उसको क्या पता चला कि वो जो चर्च जिसको वो समझ रहा था, जिसको वो डोम समझ रहा था, that was actually a bird's egg. Before I could run away, इससे पहले कि मैं वहां से भागता, the bird flew down. bird नीचे आ गया and sat on its egg. और वो अपने egg में बैठ गया. I was a prisoner under its great hot body. Now he was trapped inside it. ठीक है, जब वो वहां पे डूम के पास पहुंचा, उसने birds देखे. bird देखा, एक बहुत huge bird जो कि आके वहां पे बैठ गया. Now he was a prisoner under its body. My turban fell off my head. अच्छा, turban कहते हैं पगड़ी को. This is the turban. ठीक है, he is wearing a turban on his head.
So what happened next was my turban fell off my head. मेरी टर्बन मेरे सर से नीचे गिर गई. That made me think of a plan. जिससे मुझे एक प्लान याद आया. ठीक है. I tied myself to the bird's foot with the cloth of my turban. उसने अपनी टर्बन को खोला, उसके क्लॉथ से खुद को बर्ड की पाँव के साथ बांध दिया. ठीक है. I prayed to God, मैंने अल्लाह से दुआ की to help me कि मेरी मदद करें. And then और फिर I went to sleep. और फिर मैं सो गया. Okay, snakes and diamonds. When I woke, जब मैं जागा, the wind was blowing past my ears. ठीक है. When he woke up, उसने देखा कि हवा बहुत तेज चल रही है. ठीक है. जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो हमें उसका शोर कानों से सुनाई देता है. I was hanging under the bird's foot. ठीक है. He was hanging under the bird's foot because उसने खुद को टाई अप किया था bird's foot के साथ. तो he was hanging, वो लटक रहा था bird's foot से. There was nothing except empty air between me and the ground. ठीक है. There was one line. I was a prisoner under its great hot body. My turban fell off my head. Next देखिए. I was hanging under bird's foot. There was nothing except empty air between me and the ground. ठीक है. उसके और ग्राउंड के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ empty air थी और कुछ भी नहीं था. Every beat of the bird's great wings was carrying me higher. जैसे ही वो बर्ड अपने पैरों से उड़ रहा था वैसे वैसे वो ऊपर को जाता चला जा रहा था. I looked down, मैंने नीचे देखा and saw the egg. और मैंने एग को जब मैंने नीचे देखा तो उसे क्या दिखाई दिया? उसको एग दिखाई दिया. It looked as small as a toy. वो बिल्कुल ऐसे स्मॉल दिख रहा था जैसे कि टॉय होता है. I shut my eyes again and began to pray. मैंने अपनी आंखें बंद की और दुआ करना स्टार्ट की. Up and up we went. हम ऊपर से ऊपर जाते चले गए. The air grew thin and cold. और जैसे ही वो ऊपर जाते चले गए एटमॉस्फेयर और ज्यादा कोल्ड होता चला गया. ठीक है. When I opened my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली, the bird was flying slowly. बर्ड बहुत स्लोली अब फ्लाई कर रहा था. Very close to the ground. ग्राउंड से जमीन के बहुत पास वो बहुत स्लोली फ्लाई कर रहा था. I untie my turban. मैंने अपनी टर्बन को अनटाई किया, उसको वहां से खोला from its foot and jumped down. और उसने नीचे जंप कर दी. ठीक है. I fell into a strange lonely place. मैं एक स्ट्रेंज अजीब सी लोनली जहां पे कोई भी नहीं था प्लेस पर गिर गया. There were black rocks everywhere. हर जगह पर ब्लैक कलर की चट्टानें मौजूद थी. No trees, no grass, no water. जहाँ पे ना कोई ट्री था, ना ग्रास कोई, ना ही कोई वाटर था. I cried to God. मैं उसने रोना शुरू कर दिया. He cried to God, oh Father, why did you save me from the sea? ठीक है. आपने मुझे सी से क्यों बचाया? Was that death too gentle for me? उसने सोचा कि अगर मैं सी में वहां पे अगर मैं मेरी डेथ हो जाती तो क्या वो मेरे लिए ज्यादा जेंटल डेथ थी. I looked round. उसने आगे पीछे अपने इर्द गिर्द देखा. There were great wall of rock all around me. उसके आसपास great wall of rocks थी. They were very high. बहुत ऊंची थी. And there was nowhere to climb up. और को चढ़ने का उनके ऊपर कोई रास्ता नहीं था. I was sure, मुझे यकीन था, I could never get out. मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता. Suddenly something moved beside a rock. Suddenly something moved beside a rock. Beside me, next to, उसके पास. Suddenly अचानक उसने देखा कि रॉक के पास से कोई चीज गुजर रही है, मूव कर रही है, हरकत कर रही है. It was a snake. वहां पर एक स्नेक था. I saw many more snakes asleep on a
hot rock. I saw many more snakes asleep on the hot rocks. उसने चट्टानों पर बहुत सारे स्नेक्स को सोते हुए देखा. One of them walk and began to move towards me. उनमें से एक जागा और उसने मेरी तरफ आना शुरू कर दिया. I picked up a stone to throw at it. उसने एक स्टोन उठाया ताकि वो उसको मार सके. Then I looked at the stone. फिर उसने स्टोन को देखा and my mouth fell open with surprise. और वो suddenly surprised हो गया. ठीक है. It was a huge, beautiful diamond. Underline this line. I looked at stone. यहाँ तक. I looked at the stone. मैंने stone को देखा. My mouth fell open. वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया. इट वॉज अ ह्यूज ब्यूटीफुल डायमंड. उसके हाथ में जो चीज थी वो इट वॉज नॉट अ स्टोन, इट वॉज अ डायमंड, बिगर देन द बिगेस्ट डायमंड यू हैव एवर सीन. ठीक है. सबसे दुनिया में सबसे बिगेस्ट डायमंड उसके हाथ में था. एवरीवेयर आई लुक द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद डायमंड्स एंड अदर जूल्स. उसने हर जगह पे देखा, हर जगह पर डायमंड्स और डिफरेंट किस्म के जूल्स जवाहरात पड़े हुए थे. What a place, I said to myself. उसने खुद से कहा क्या जगह है. Snakes and diamonds, जिसमें snakes भी हैं और साथ में diamonds भी हैं. Then a large bird flew down. फिर उसने देखा कि एक large bird नीचे आई and caught one of the snake. और उसने snake को एक snake को पकड़ लिया. The others moved away. और तमाम other snakes वहां से दूर हो गए. They were frightened of birds. So the snakes were frightened of birds. Just then, उसी वक्त something heavy fell down on the ground beside me. उसके पास कोई बहुत heavy चीज जमीन पर गिरी. At first, शुरू में I thought, मैंने सोचा it was one of the big birds. उसने सोचा कि कोई big bird है. Then I realized, फिर उसको ने ये चीज realize की, उसको ये चीज पता चली, it was a piece of meat. So students, ऐसा करते हैं, we should stop here. ठीक है. I will start from this paragraph, saved by a piece of meat. ठीक है. Next week we will begin from here. ठीक है. So let's come to the question answering session. If you have any question, you can raise your hand. Abiha Zahid, unmute yourself. Assalamualaikum teacher. Walaikum assalam. Beta, do you have any question? टीचर जो आपने होमवर्क दिया है उसके अंदर आपने यूनिट 6 दिया है. Yes. और टीचर हमने जिस तरह पिछली बार उसके सेंटेंसेस बनाए थे वैसे ही बनाने हैं. बिल्कुल, जैसे कि आपके पास वर्कबुक में वर्ड्स मीनिंग है, सेंटेंसेस है, आपने सेंटेंसेस बनाने हैं खुद से और उसको लूज शीट पे लिखना है. डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन योर बुक वर्कबुक. ओके, थैंक यू. वेलकम बेटा. उमेर आमिर, अनम्यूट योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम सलाम. टीचर मैंने आपसे ये कहना था टीचर, ये इस चैप्टर का पहला पेज टीचर, तब मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था. ओके तो ओके टीचर ओके, वो जो मैं आपको इसका फर्स्ट पेज दिखा देती हूँ. ठीक है. दिस फर्स्ट पेज में जस्ट वन लाइन है. आई पेड अ कैप्टन एंड सम सेलर टू वर्क फॉर मी. ओके, यस टीचर. वेलकम बेटा. फातिमा साजिद, अनम्यूट योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम अस्सलाम. टीचर मैंने आपसे पूछना था ये डॉग का मतलब क्या होता है, वो जो आपने उसमें बताया.
डूम, डूम कहते हैं गुम्बद को, जैसे गुम्बद होता है ना सर्कल शेप का, ठीक है, जैसे पिक्चर में भी था, देयर वाज, यस, इस तरह का, ठीक है, डूम सर्कल शेप होता है। ओके, थैंक यू। वेलकम। यस मोमिना अली, unmute yourself. Yes beta, speak up.